Let everyone join, then we'll begin. Wait for 2 minutes, okay, but so we'll begin now. Okay, we cannot wait forever. Do you know what is myelin sheath, guys? पता है क्या होता है myelin sheath? Yes, sir. या क्या होता है? Can you tell me? It is a layer around the nerves which Very good. means which has a protein and fatty substance. Okay. So very good, beta. So this myelin sheath is around the neurons, okay, which is the cells of the nervous system. Okay. So that is also lipid. That is what we call as sphingolipid. ठीक है, उसको हम sphingolipid बोलते हैं. Then there are glycolipids जिसमें sugars bound होंगे. इसमें क्या होगा? Sugars या carbohydrate. Okay, it is prosthetic group which is bound to lipid. तो उसको हम बोलते हैं, इसका एग्जांपल है ब्लड ग्रुप. मीन और हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप या ब्लड सेल्स के ऊपर इसके जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी है उसके ऊपर इसके कंपाउंड्स होंगे. ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं अबाउट दी फॉस्फोलिपिड्स. ओके, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, लेट मी शेयर समथिंग. Just a moment, guys. I'm just sharing the image. See, दिख रहा है आपको इमेज? आपका टेक्स्ट बुक का इमेज मैंने शेयर किया. ठीक है, दिस इज फॉस्फोलिपिड. ठीक है, फॉस्फोलिपिड है. इसमें आपको यू कैन सी 3 different variable groups. Okay, this is R1, R2 is there. Okay, at least 2 will be C, and then there will be this CH3 groups. So this is, आपको ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. इसको आपको मगअप नहीं करना है, but they may ask you and you should know this is phospholipid lecithin. This is palmitic acid. This is glycerol. Lecithin is important. This is cholesterol.
This is cholesterol. So this lecithin and cholesterol are important for questions. And this is a triglyceride. So triglyceride, you can see R1 and R2 and R3 triglycerides. Okay, what I was referring to earlier. Okay, यहाँ पे जैसे you can have only one and R1 and R2. यहाँ पे तीन variable groups है, which are fatty acids, which is linked to glycerol. तो देखो आप यहाँ पे देखोगे this part. Okay, then this is the glycerol part. Okay, this is the glycerol part. जो इस तरह से resemble करता है, and then there is bound. These are all R groups are bound to it. ठीक है. So we are discussing about this only. तो अभी हम लोग I would like to tell you something about lecithin. Okay, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं. It is a phospholipid. Okay, so just a moment. Let me add some slides. See. So lecithin के बारे में they have asked some specific questions, इसीलिए I am talking about that. See, the first thing is lecithin is a phospholipid. मैंने आपको उसका structure भी दिखाया, as you can see over here. This one is lecithin. Okay. Then this lecithin, it is कहाँ पे present होता है? It is found in cell membrane. It is found in cell membrane. ठीक है, plasma membrane या cell membrane present होता है. It is made up of what? Okay, so it is a phospholipid, so it has glycerol plus fatty acid plus phosphorus. इसमें क्या है? ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड है और phosphorus. Okay, now see, this what we call as this glycerol, fatty acid and phosphorus, their intake is a phospholipid part of the cell membrane, and we refer to that as a lecithin. Now this lecithin is mainly a surfactant in alveoli of lungs. Do you know what is alveoli, guys? Anyone? Balloon-like structure found in lungs. Exactly. So it is responsible for oxygen and carbon dioxide exchange. So lungs on the alveoli surface, okay, this lecithin is present as a surface material, and it increases oxygen conducting capacity. Okay, so this lecithin increases what we call as the capacity of alveoli for gaseous exchange. Okay, it increases gaseous exchange surface area, as it is present on the surface of alveoli. So this is also, this question can be asked. This is also, it has been asked. ठीक है, got it. हम लोग इसके बारे में आगे भी बात करेंगे when we study respiratory system. Respiratory system में we'll talk about this further. Okay, got it, guys? Yes, any problem? Yeah, it is important. It's very important. So make sure you know all of these things. Then we are talking about the neural tissues. Okay, फिर हम बात कर रहे हैं about the neural tissue or nerve or neurons. So अभी जैसे कि we had said that myelin sheath जो होता है ना, so it contains, these neurons contains myelin sheath, which is a fat layer. It provides insulation to neuron. Why? For conduction of nerve impulse. ठीक है. So that is also, remember that this is a sphingolipid. That lipid is what we call as sphingosine or sphingomyelin. ठीक है. तो ये just आपको पता होना चाहिए about this also. Got it, guys? कोलेस्टेरॉल आपने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा है तो पता होगा कोलेस्टेरॉल इज आल्सो इन द सेल मेम्ब्रेन. फिर कभी आपने सुना होगा किसी को हार्ट में ब्लॉकेज हो गया, तो इट इज वेरी कॉमन टू बी गुजराती पीपल, क्योंकि वी ईट लॉट ऑफ ऑयल रिच फूड्स, तो इसके वजह से दिस विल गेट डिपॉजिटेड. ओके, फिर उसके बाद बाईपास सर्जरी करवाना पड़ता है. दैट इज कोलेस्टेरॉल आल्सो. इट कैन देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलेस्टेरॉल, गुड एंड बैड कोलेस्टेरॉल. दैट इज नॉट पॉइंट, बट जस्ट आपने सुना होगा तो इसीलिए मैंने ये आपको बताया. ओके, सर सबकी बॉडी में होता है कोलेस्ट्रॉल? सॉरी, सर सबकी बॉडी में होता है या कोलेस्ट्रॉल? सी कोलेस्टेरॉल इज वेरी यूजफुल. ऐसा नहीं है कि इट इज हार्मफुल.
ठीक है, इट इज वेरी यूजफुल बिकॉज न्यूरॉन्स एंड ऑल दिस लिपिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. बट अगर हम लोग कंटिन्यूअसली विल कीप ऑन ईटिंग डीपली फ्राइड फूड्स, ओके, एंड देन विल नॉट एक्सरसाइज और विल जस्ट कीप ऑन सिटिंग एंड विल हैव अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तो यस इट विल स्टार्ट टू डिपॉजिट एंड देन कैन कॉज प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो इट इज वेरी, मतलब ऐसा नहीं है कि दिस लिपिड्स आर बैड, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बिना तो वी कैन नॉट सर्वाइव इनफैक्ट, लाइक आवर आईज फॉर एग्जांपल, ओके, देन आवर सम ऑफ द लिवर फंक्शनिंग, ये सब जो है वो लिपिड्स आर वेरी मच नीडेड. अगर ये नहीं है तब भी, बट इफ इट इज टू मच तब प्रॉब्लम होता है. और हम लोग एज यू नो वी गुजरात इज वी ईट लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड रिच फूड, ओके, ऑयल रिच फूड खाते हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज प्रॉब्लमेटिक फॉर अ लॉट ऑफ अस. इफ यू नो गुजरात इज लाइक इन इंडिया, we are home to the population of the largest population infected by diabetes and heart problems. The heart problems, one of the main reason is cholesterol deposition जो होता है, okay, उसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में, ह्यूमन फिजियोलॉजी में, आई टीच यू. तो इफ यू टॉक अबाउट द ह्यूमन बीइंग्स, ओके, तो हम लोग मतलब गुजरात का पॉपुलेशन का बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर अबव 40, उनको ज्यादा होता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो होता है. तो इसलिए मतलब हमारा ऑलमोस्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन हमारा जो है स्टेट का, वो अफेक्टेड है विद डायबिटीज एंड ऑल दिस कोलेस्ट्रॉल इश्यूज. ठीक है, सो इसलिए ऐसा भी बोलते हैं कि जो हम लोग ऑयल खाते हैं ना, दिस ग्राउंड नट ऑयल एंड एवरीथिंग, वी शुड कीप ऑन चेंजिंग इट एवरी टाइम, लाइक वी शुड इट, ताकि एक ही टाइप का कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट ना हो. Like you should eat rice bran oil, you should eat sunflower oil, you should eat groundnut oil, you should keep on changing it. ऐसा बोल डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं. ठीक है, Okay, sir. या सो इट इज, मतलब इसका इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि इट इज मतलब ऑलवेज हार्मफुल, बट ज्यादा है तो फिर इट विल बी. और इसका भी दो टाइप्स है एक्चुअली. क्या होता है बेटा, देयर इज समथिंग कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, और देयर इज समथिंग कॉल्ड सैचुरेटेड फैटी एसिड. सो क्या होता है कि अगर उसमें भी देयर आर टू टाइप्स, पॉली अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड, ओके, पॉली अनसैचुरेटेड, मोनो अन. सो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अच्छे है, उससे कोलेस्टेरॉल नहीं होगा. लेकिन अगर हम लोग डेली वी विल कीप ऑन ईटिंग समोसा एंड कचौरी एंड दाल वड़ा एंड ऑल दोस थिंग्स, देन इट विल deposit this fatty acid, okay, because it has more saturated fat, so that can lead to problems, और उसके वजह से कोलेस्टेरॉल प्रॉब्लम्स कैन अराइज. तो उससे क्या होगा, जहाँ पे ब्लॉकेज होगा वो आर्टरीज या वेन्स में, तो वहाँ पे ये आर्टरीज में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाएगा. ठीक है, so this is just about this cholesterol. Got it? आगे बढ़े. Hello, am I Yes. audible? Yeah, okay. So now last part about lipids, okay. Now last part about lipids. The lipids, remember, lipids can be classified as fats and oils, and this is strictly on the basis of their melting point. This is strictly on the basis of melting point, okay. So if there is more saturated fat, then the oil will freeze, okay. Now see there, if you had observed, आपने विंटर में ऑब्जर्व किया होगा कि जो पैराशूट हेयर ऑयल है वो फ्रीज हो जाता है ना, कि नहीं, ओके. लेकिन अगर आप ग्राउंडनट हाँ ऑयल खाते, हाँ, तो ग्राउंडनट ऑयल जो आप खाते हैं वो फ्रीज नहीं होगा, जैसा आपने ऑब्जर्व किया होगा, ओके. तो वैसा क्यों, मतलब पैराशूट विल फ्रीज बट ग्राउंडनट ऑयल जो है वो फ्रीज नहीं होता. किया है कि नहीं आपने ऑब्जर्व, जब जब व्हेन देयर इज मोर हाँ विंटर, सर. हाँ, इवन घी, जो घी है, ओके, विच वी यूज, तो घी भी गेट्स फ्रीज ना विंटर में कंप्लीटली, यस और नो. और अभी समर में कैसा होगा, लिक्विड होगा ना पूरा. Yes, sir. हाँ, सो व्हाई, बिकॉज दिस इज ऑन द बेस ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट. देयर आर टू थिंग्स. हाँ, ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है. देयर आर टू थिंग्स, ओके. सो जी, नेचुरली जिसको हम ऑयल्स बोलते हैं, ओके, सो ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट. ऑयल्स का क्या होता है, दे हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन फैट्स. तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, इट विल, सो दैट्स व्हाई ये ऑयल्स जो फ्रीज नहीं होंगे, दे विल नॉट फ्रीज इन विंटर. तो इसका मतलब क्या है,
कि हम तो एक ही बात बोलते हैं ना, सबको हम ऑयल ही बोलते हैं, ऐसा नहीं होता। देयर आर आल्सो ऑयल्स एंड फैट्स। तो दिस जो ऑयल है, जो रियल में ऑयल है वो फ्रीज नहीं होगा। ओके, फॉर एग्जांपल देयर इज चिंजली ऑयल। चिंजली ऑयल पता है आपको क्या होता है? एनीवे, तलनु तेल के तिल का तेल, दैट इज चिंजली ऑयल। ओके, देन देयर इज, लेट्स से, groundnut oil. So this will not freeze. Mustard oil. Okay. So this will not freeze. Now see. दूसरा क्या होता है? It depends on saturated fat. So if there is more saturated fat, then they will freeze. If there is more saturated fat, then oils will freeze. Okay, then oils will freeze. ठीक है, for example, coconut oil. तो जिसमें ज्यादा, देयर आर टू थिंग्स, एक ये डिपेंड करता है मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, और दूसरा डिपेंड करता है ऑन देयर अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैट। अगर ये ज्यादा है तो फ्रीज होगा, अगर ये कम है तो फ्रीज नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज द रीजन गाइस, दिस इज द रीजन। तो कोकोनट में क्या होता है कि सैचुरेटेड फैट ज्यादा है तो फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो लिपिड्स में इतना है, लिपिड्स में इतना है। गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. सभी कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए लिपिड्स में। If you have any issues in lipids, please ask. थोड़ा क्वेश्चंस करते हैं अभी, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो, जो नीट में which has been asked. Yes or no, guys? Yes, sir. Okay, just a moment. ये पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा। ફ્રન્ટમાં શું તમારે જગ્યા જેટલી હોય ને તે બધી કામમાં એટલે મીન્સ કે જગ્યા બધી જગ્યામાં તો અમુક ખુલે એવું આમાં એક વિસ્તાર So just a moment, let me just just a moment, let me just open that. Okay, can you see the questions, guys? दिख रहा है सभी को? Yes or no? दिख रहे हैं questions? Yes, sir. Oh. Now see. क्या होगा इसका आंसर?
क्या होगा इसका आंसर गाइस? एनीवन? Which is the most abundant protein in animal world? ऐसा क्वेश्चन है, तो क्या आंसर आएगा इसका? अभी तो हमने डिस्कस किया। कोलाजन, कोलाजन यस सर। यस यस, कोलाजन। वेरी गुड। देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, बट दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। इसमें क्या बोला है आपको कि आपको एक टेट्रापेप्टाइड मींस देयर आर 4 अमीनो एसिड्स, जिसको टेट्रापेप्टाइड बोलते हैं, तो आपको इसमें से करेक्ट चूज करना है, ठीक है? तो मैं आपको ये कैसे कहाँ से आया है मैं आपको सिखाता हूँ। ओके, जस्ट लेट मी शेयर। ओके, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, बट इसलिए मैंने बाद में ये आई केप्ट इट लेटर ऑन की, ताकि आपको पता चले कि ये कहाँ से है, तो यू कैन टेक इट। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ। वो पुराने टेक्स्ट बुक में था, लेकिन इन लोगों ने क्वेश्चन में ये पूछा है। जस्ट अ मोमेंट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट दैट इमेज। सर यस बेटा। सर वो जो 8 चैप्टर है उसमें मुझे जो डाउट है वो मैं पूछ सकती हूँ आपसे? बेटा बेटर है कि आप यू आस्क टू दिस सर। बाद में अगर ऐसा नीट का होगा तो मैं उसमें वापस ले लूंगा, क्योंकि इट विल नॉट लुक गुड। जो सर ने पढ़ाया तो आप उनसे ही पूछो तो बेटर है ना, क्योंकि इट विल नॉट लुक गुड। तो अगर ऐसा है तो आप एंड देन यू कैन आस्क दी सर, अगर वो एड्रेस नहीं हो रहा देन यू कैन आस्क मी, नो इशू, ठीक है? देन आई कैन टेक इट, और मैं ऐसा है तो उस चैप्टर्स को वापस ले लूंगा, ओके सर। क्योंकि इट लुक्स बैड, तो इसलिए जब हम नीट के लिए करेंगे तो विल टेक इट। जस्ट अ मोमेंट, आई एम ट्राइंग टू फाइंड द इमेज, वेयर इज दैट इमेज? ओके, yeah, got it. So see, yeah, let me put it over there, ताकि आपको भी वो रेफरेंस के लिए। मुझे आपके डाउट्स आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बट इट विल नॉट लुक गुड, इसीलिए, ठीक है? सी, सो कैन यू सी द इमेज मैंने शेयर किया, उसके ऊपर से क्वेश्चन है ये। सो दिस इज अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है ना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ना, एस यस और नो? यस सर। ओके, नाउ इफ यू टेक दिस पार्ट, आप उसको एक्सपांड करते हो, then you can see these are the amino acids 1 2 3 4. So each amino acid can have a 3-letter symbol, or it can also have 1-letter symbol. तो कितने amino acids total? there are 20 amino, आपको पता होगा total 20 amino acids है ना? So see, यहाँ पे आपको serine, cysteine, so this is serine, this is cysteine, this is tyrosine and this is glutamic acid. तो उसके आपको symbols दिए, आपको 3-letter symbol दिए। Okay, that is first 3 letters, देख सकते हो आप यहाँ पे, दिख रहा है? Okay, and then नीचे आपको सिंगल लेटर सिंबल दिया, नीचे आपको दिस सिंगल लेटर सिंबल हैज बीन गिवन, SCY। सेराइन का S है, सिस्टीन का C है, टायरोसिन का Y है, ग्लूटामिक एसिड का E है। ओके, सो एज यू कैन सी दिस इज 3 लेटर सिंबल और दिस इज 1 लेटर सिंबल। तो यहाँ पे सल्फर किस में? सिस्टीन में दिख रहा है ना सल्फर? एज यू कैन सी यहाँ पे, यू कैन सी देयर इज सल्फर इन दिस सिस्टीन। ओके,
दिस इज टायरोसिन एज यू कैन सी एंड दिस इज ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। ओके, इसके ऊपर से जो आपको क्वेश्चन मैंने पूछा अभी, मैं वो क्वेश्चन वापस शेयर कर रहा हूँ। नाउ यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन ऑन दैट बेसिस। ओके, तो क्या सही है इसमें से गाइस, व्हाट इज करेक्ट? What is correct? Anyone? See, this is wrong ना, यहाँ पे सल्फर तो है ही नहीं इसमें, आप देख सकते हो। ओके, ये थोड़ी ना एसिटिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड। इट इज नॉट ग्लूटामिक एसिड, नो, दिस इज सिस्टीन। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ये तो चेक किए ग्लूटामिक एसिड है कि नहीं। तो आपको अगर आप देखो यहाँ पे, तो क्या ग्लूटामिक एसिड, कैन यू सी? ये डी इज ग्लूटामिक एसिड, CH2COOH दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे दिख रहा है दिस पार्ट गाइस। हाँ सर। तो इज इट करेक्ट? देखो आप यहाँ पे चेक करो, चेक दिस आउट, है ना। इसको इट लुक्स ओके। सी इज ट्रिप्टोफान, जो दिख रहा है एरोमेटिक ट्रिप्टोफान है। आप देखो यहाँ पे सी इज टायरोसिन ना, देखो ये तो टायरोसिन है, दिस वन इज टायरोसिन नो, है ना। तो ये तो नहीं आएगा, तो वो भी गलत है। ओके, सो ओवर हियर दिस इज आल्सो रॉन्ग। ओके, ए इज सी टर्मिनल एंड डी इज एन टर्मिनल। ओके, तो वो भी गलत है ना, इसमें तो उल्टा होता है ना, यहाँ पे एन टर्मिनल होगा और यहाँ पे सी होगा ना, लेफ्ट एंड राइट, तो ये भी गलत है। दिस इज करेक्ट। सो ग्लूटामिक एसिड जो डी दिया है आपको, दिस इज करेक्ट, है ना, दिस इज करेक्ट। गॉट इट? तो वो जो मैंने आपको दिखाया, मैं आपके वो स्लाइड्स में डाल दूंगा, उसके ऊपर से पूछा है, जो पुराने सिलेबस में था, मतलब 3 साल पहले की टेक्स्ट बुक में था। ठीक है गाइस, एनी प्रॉब्लम्स इन दिस? समझ में आया सबको कैसे है ये क्वेश्चन? हाँ सर। ओके, अभी इसमें से आप बता सकते हो कौन सा बेसिक अमीनो एसिड है? ये 4 में से कौन सा बेसिक अमीनो एसिड है? एनीवन? बेसिक ग्रुप के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? NH2 अमीनो ग्रुप। तो एसिडिक के लिए C डबल, तभी आपको उसके ऊपर से जज करना है कौन सा बेसिक है। जिसमें जितने ज्यादा NH2 होंगे वो बेसिक होगा। तो कहाँ पे दिख रहा है आपको? यहाँ पे एक NH2 है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे देखो 1 और 2, तो कौन सा बेसिक हुआ? दो है। तो डी। ये डी हुआ ना, दिस इज करेक्ट आंसर। सो डी इज दी बेसिक अमीनो एसिड। ठीक है, ओके, इसमें क्या आंसर आएगा? फोर्टीन। 14 नंबर में सर। या बेटा, मैंने अंडरलाइन किया ना, 14 मैंने सर्कल किया ना, देखो। आई होप दिख रहा है ना सबको कि नहीं, कि और साइज बड़ा करूं? ओके, 14 या क्या आएगा इसमें? ग्लाइसिन। ओके, so the answer is glycine. Okay, why reason, can you tell me बेटा, reason क्या है? It only has hydrogen as R group, no? ठीक है,
Then Yeah. in this 15, 15. 15 क्या आएगा आंसर? Anyone? Anyone guys? प्रोटीन पर लेकिन कौन सा? It's a fibrous protein ना, अभी आज ही डिस्कस किया हमने. It's a fibrous protein. Then 16 guys, क्या आंसर आएगा? ये भी आज ही डिस्कस किया हमने. 16 में what will be the answer over here? ग्लाइकोप्रोटीन्स. Yes, it is a sugar, so there will be glycoprotein. इसमें क्या आएगा? Secondary structure. कौन सा सेकेंडरी है इसमें से? आप देखो इस सेकेंडरी. और बीटा, अरे अल्फा हेलिक्स. ये तो कुछ होता ही नहीं ना, बीटा शीट होता है. So we only two secondary structure. Either it can be alpha helix or it can be beta sheet. तो this is secondary. तो यही करेक्ट है ना इसमें. इसमें क्या आएगा बेटा? Three glycerol and 3 fatty acid molecules. No, not three fatty acid. No बेटा. Not one glycerol and 3 fatty acid molecules. One glycerol and 3 fatty acid. ठीक है ना? It will be 1 glycerol and 3 fatty acids. Got it? Yes, sir. What be the answer in this, guys? 19. This one. Peptide bond. Sorry? No बेटा. Peptide No. Diversity पूछा है. No बेटा. Diversity पूछा है. Variable group. कौन सा है variable group? R groups on the amino Okay, acid. so yeah, so it is because of the R groups. It is different in each amino acid, no? That's why we have variability, no? Yes, sir. What will be in this case? समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं आया समझ में? नहीं समझ में आया. Okay. See, phosphoglycerate means phospholipid के बारे में ही बात किया है. तो क्या होगा इसमें? Fatty acid is always esterified with glycerol. और उसके साथ क्या अटैच होगा? फॉस्फेट ग्रुप. तो अगर ये किस तरह का स्ट्रक्चर होगा? ग्लिसरॉल हुआ, फैटी एसिड हुआ, एंड देन फॉस्फोरस भी अटैच हुआ ना यहाँ पे. ठीक है. तो क्योंकि एज यू नो देयर इज ऑलवेज एस्टरिफिकेशन बिटवीन ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, सो अ फॉस्फोग्लिसरेट विल हैव a saturated or unsaturated fatty acid which is esterified to a glycerol, to which a phosphate group is also attached.
to which a phosphate group is also attached. Okay, ये तो दोनों हो नहीं सकते ना, क्योंकि थोड़ी ना ये this cannot be esterified. Okay, this can also not be only possibility. Okay, this there cannot be only it can be any saturated for unsaturated, so it will be the B option. पता चला? Got it guys? हाँ सर. इसमें क्या आएगा? Lipids are insoluble because they are Because they are neutral. no hydrophobic beta. Come on, they are hydrophobic. Yeah, No. sir. Okay, so these are the some of the questions, and you should be able to do these questions. Okay, so that is all for today. You have, I think, a next lecture at 11 a.m. So I am going to end the meeting. Okay.